The CATIA is a Dassault system software. Okay, कंपनी जो है वो Dassault सिस्टम है ये. Origin is from France. Okay, so basically they works for designing of fighter planes. पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करते थे वो एक्चुअल में. उसके बाद वो डिज़ाइन इंडस्ट्री में आए 90s 80s में. ओके. और they developed this first software name as CATIA. Then the other products of this are SolidWorks, Solid Edge. So Dassault System has multiple softwares for engineering applications. Okay, so here this software can be used for infra, mechanical design, state design. So multiple workbenches are there in this. So we are going to use only one workbench in this, that is mechanical design in that part design. Okay, so this can be used for assembly, sketcher, weld designing, mold designing, multiple applications of design. You can use this software. Okay, so in industry, most of this is used for surface designing purpose. Okay, for example, car designing is there. So to develop the shape of the car and all, sheet metal designing of your car, they uses this software. Okay, so you have to go to the start button and then go to mechanical design and click over part design. So the interface will change and you will able to see these planes. This is the XY plane, this is YZ, and this is the ZX plane. So this depends upon this Cartesian coordinate system shown over here. So this is the x-axis, this is y-axis, and this is the z-axis. So environment of two axes will give you one plane. Okay, so this will be xy, this will be yz, and this will be zx depending upon the axis given over here. Okay, so sometimes students what they do, they cancel out this taskbar. This is called as a taskbar, and in that taskbar, a single entity is called as a commands. Okay, so sometimes they cancel out this type of taskbar. Then how to bring back all the taskbar for that? Once a resetting option is there, you have to just right click over this DTS criteria and go down to this option customize eyes, and this is similar to Sketcher as well as for 3D workbench. And then click over this toolbar tab. So in that, restore all the contents and restore the positions. So what it will do, it will restore all the taskbar which is cancelled out, and it also restore the position of default position of that taskbar. Okay. So this is the resetting option. How you can bring all the commands back. You have to click right click, not a left click. Right click only can show you that band, and in that you have to click over customize, and in that customize option one window will pop up, and in that you have to click over toolbars, and in that tab you will able to reset your this contents and the positions. Okay, so coming back to our problem, the basic concept of any CAD modeling or any CAD modeling software to design any part, that is that to divide the object into two dimension, means you have to sketch one first two dimensional drawing, and then after you can give the volume or subtract the volume to create the model. So here also we have to use the same concept. I have to draw a sketch that is of two dimensional, whether it is a length or height, or length or width, or either a width and height, depending upon which side you are facing, whether it is a front view, top view, or a side view of an object. Okay, so basically when you are going to work as a design engineer, this 3D model will be not given in your work. They have provided you orthographic projection, that is 2D. Sorry, two-dimensional drawing will be there. Okay, front view, top view, and side view. Likewise, they have given here for you to complete any drawing. Okay, so here what we can do, we can divide this into number of sketches in such a way that
minimum sketches required, minimum commands are required to complete this object. Okay, so वो पानी बॉटल लगे अंदर ब्लू ब्लू पानी नहीं है उसमें, उधर अंदर नीचे की तरफ। ठीक है सर। Okay, so first thing what we do, uh, we will create one plate, okay, rectangular plate with a hole. Okay, so in one sketch we can complete this two thing, that is this plate plus this hole. Okay, so what is the size of this? 100 by 85. Okay, and the circle is of diameter 25, from this edge 25 mm, and from this edge 35 is the center. पानी पी के आता हूँ। Okay, so what we can complete from this, a simple rectangle with a circle. So this portion will be completed. Then we can give the volume up to 15 mm. ये 15 mm का वॉल्यूम दे दिया तो वो आ जाएगा। नेक्स्ट स्केच what we can draw is that this shape, inverted shape of 7. Okay, so in that we can complete this profile. Okay, and then after we can add this one rectangle or one square over that to create this one. Okay, so 3 sketch, and the final sketch, okay, it has inverted here. Okay, okay, so there are different depths, so we have to create a number of sketches for that. Okay, अब सेम डेप्थ का रहेगा तो आप एक इसमें कर सकते हो, और अलग अलग डेप्थ दिए हुए रहेंगे तो आपको you have to draw it separately, otherwise it will not create that sketch. Okay, so we will create 1/7 type of profile, and we will extrude up to this thickness, means 15 mm thickness. Okay, then we can sketch one rectangle over here, and we can complete this height. Okay, and similarly this also we can create, and we can complete this one. Okay, and finally one rim will be required to complete this entire sketch. So almost 4 to 5 sketches are required to complete this part. Okay, so we'll start with first with this. So first thing is that you have to select that particular plane which you are going to sketch. If I going to sketch in this way, then I have to use XY plane. If I want to sketch in this way, then I have to use ZX plane. If I want to sketch from this end, then I have to use a YZ plane. Depending upon which side you are going to sketch, you have to select the plane. So likewise, you have to select this XY plane. So in this software, whichever command or whichever part you are going to select, it will convert into brick red color. Okay, so it means that that is active. Then you have to click over this paper pencil type command, that is named as a sketch. Just click over this and go to sketch. Just click over this and go to sketch. As you click over that, your interface will change. One graphical type of interface will appears in front of you. Okay, so so this is the horizontal axis, and this is the vertical axis. Okay, and this is the origin of your this sketcher workbench. Okay, so now what we have to do,
you have to use this particular taskbar. That is, this is called as a profile taskbar, in which a number of profiles are commands are given for rectangle, circle, for various type of shapes. Basic shapes are there, arcs and all. All these commands are given in a profile taskbar. Then to give the dimension for your dimension for your sketches, you require a constraint taskbar. From this, you can give the dimension to your sketches. Then after that, some features, if you want to give, or you have to make a symmetry of your profile, then you can use multiple options over. This is called as operation taskbar. Okay? If you want to cut some lines and all, then all that words are comes under operation taskbar. Then you require this taskbar, view taskbar, to for a different orientation of your sketches, for 3D also and for 2D also. So if you want to zoom in, zoom out, if you want to rotate, if you want to pan it, if you want to fit the screen, if you want multiple views, isometric view, front view, top view, side view. So related to all views, this taskbar is used. Okay, and then after to exit from this sketcher verbiage, you have to click over this exit one. So total this is mostly used for sketching purpose. Okay, and make sure that these three options are selected. So that is grid, then this one is a geometrical constraint, and last one dimensional constraint. So this is always active. Okay, so if it is not active, then you have to make it active. Okay, and these two options should be not used. So this is a snapping point, and this is a construction. So this is for creating a construction lines only. And if you select this only, you can snap from this corner points of your graph. Okay. If you want a middle point in between this graph, it will not allow you. Only it will allow you the snapping point of this squares. So that's why I have closed these two options. Okay. So again, right click over this, customize and toolbars. I will restore the position, not the contents, because all the contents are there. So now just move this to the top ribbon, and I don't require this option. I will cancel it. Okay, so start sketching this. For this, we require a rectangle. Okay, so I will use a center rectangle. So you have to move your cursor to this rectangle. Then white arrow will appear. So it will show you multiple options of rectangles. In that you have to use the center rectangle option. Okay. Then you have to move your cursor over here, and when it shows you two circles, one outer circle and one darker circle, then it means that your cursor is exactly at the origin 0, 0. Then you have to click left click, and you move your mouse and just randomly click over here. So it will create a rectangle. Okay. Now you have to check the dimension 100 by 85. So give the dimension to your rectangle. Okay. Okay, you have to do with me, otherwise you will be lag behind. So again, I will show you. Use Control Z, Control Z, Control Z on your keyboard. Control Z. Okay, okay. Now just look at it first, and then you have to do. You have to move your cursor towards this rectangle option, and when it shows you white color arrow, then only you have to click left click. Then it will open the commands. In that you have to select the second last command, that is center rectangle. Click over it, left click. Okay, then move your cursor towards the origin. Okay, then only left click you have to do, don't move your mouse. Okay, when it shows you two circles only, then you have to click left, then move your mouse, and it will creating a rectangle. हो रहा है अपन अब मैकेनिकल स्ट्रीम में आपको आना चाहिए, जिंदगी भर यूज करने. Then left click again to stop creating the rectangle. Again a left click to stop creating the rectangle. Okay,
नाउ टू गिव द डायमेंशन। हो गया क्या इतना सबका? हाँ हो गया ना? हो गया क्या? क्लिक करना है एक आणि लेफ्ट क्लिक कर, क्लिक कर, लेफ्ट क्लिक कर, राइट नहीं वापरायचं. अरे लेफ्ट क्लिक करना, कुठं करणार? एस्केप बटन दाब. अरे भाई हटिया है ना इसमें. कौन निकाला इसमें से? हटिया है भाई इसमें. ये है ना एक वो पहले इस पे नहीं प्रॉब्लम है. पहले उधर भी बैठ सकते हो, दो जिसमें कुछ रख दिया वो बैग निकाल दो सर की अलग सब जगह एक्टिव फाइल करके दो है यूज करो. वहाँ पे भी यहाँ पे भी एक बन गया रेक्टेंगल. Now you have to give the dimension to your sketch. Dimension कैसे देना है देखो. Then you have to click over this blue box. Blue box जैसा का ऑप्शन है, सिंगल क्लिक करो उसको, डबल क्लिक करो, डबल बार, दो बार क्लिक किया, it will convert into brick red color again. Now you have to click over this line and move your mouse again left click. Click over this line, move your mouse again the left, and just again come back to this option and click it. Deactivate the option. चला गया है, फिर से आपको कमांड लेके करना पड़ेगा. क्लिक. ओके, दोनों आ गए. अब देखो डायमेंशन क्या दे. It is 100 mm and this one length is 100 mm, this one is 85 mm. So for this, double click over this number and change it to 100. And double click over this number, change it to 85. हो गया. प्लेन सिलेक्ट करना, एक्स वाय प्लेन घेऊ. तो लक्ष कुठं असतं? एक्स वाय एक्स वाय एक्स वाय ऊपर लिखा है ना, स्केच में चले जाओ, स्केच ऑप्शन है ऊपर, पेपर पेंसिल जैसे इधर एक ऑप्शन है टॉप पे आ गया. हाँ डायमेंशन कैसे दे रहा है? अरे दिख बताता, जब बताता हो रहा था ध्यान दे रहा है. ब्लू बॉक्स पे क्लिक कर रहा है, तो इस पे जाके ये लेफ्ट क्लिक से करना है. सब क्लिक बोल रहा हूँ यानी कि लेफ्ट क्लिक है. राइट क्लिक जब रहेगा तो मैं बोलता हूँ कि राइट क्लिक है. ओके, इसको डबल क्लिक करके लेना है. देन इस पे लाइन पे क्लिक करो, लेफ्ट एक, और नीचे लेके आओ माउस को, और फिर एक लेफ्ट क्लिक करो, एप्रोप्रिएट डिस्टेंस. सिर्फ यहाँ पे क्लिक, और फिर से एक एप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे और एक क्लिक. तो ये बन गए डायमेंशंस. फिर से इसको डीएक्टिवेट कर लो, और फिर यहाँ पे डबल क्लिक करो उस पे नंबर पे 100, और ये कितना है 85. डबल क्लिक करके 85 हो गया. कर लो. काय आहे? अच्छा, इथं बसणं चालू आहे ना. स्टार्ट करायला लागतं. करना पड़ता सब.
अब ध्यान देना है, पीछे रह गए तो रह जाऊंगा, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। जो रहेगा वो वीडियो यूट्यूब देख के करना है उसको, इतना टाइम नहीं अपना, क्योंकि 3 सेशन मिलते हैं, इसमें आपको इतना सब सिखाना यानी बहुत ये है। डायमेंशन हो गए। नाउ I have to complete this also because it is a through hole, so we can use the this circle in the sketch. Okay, so it is from this edge, particularly it is 25 mm, and this is 35 mm. That is the center of this circle, and the circle diameter is 25. Okay, so for this, you have to click over this circle command, and randomly you have to create one circle over here randomly. Okay, and give the dimension to this circle is diameter is equal to 25. Okay, give it. अभी पिछले कमांड बोलते नहीं जाना है, स्क्वायर कमांड लो ना, यहाँ से लो, ये स्क्वायर कमांड। हाँ, सेकंड वाला सेंटर में लेगा, 2 सर्कल दिखेंगे, डार्क वाला दिखेगा। क्लिक करो, मूव करो, माउस माउस मूव करना छोड़ के वो, क्लिक करो। अब ये ब्लू बॉक्स पे डबल क्लिक करो, ये देख ब्लू बॉक्स, इधर देखना, ऊपर ऊपर डबल क्लिक करो। हाँ, ये लाइन पे क्लिक कर, ले लाइन पे क्लिक हो गया कि डायमेंशन दे दिया 25। अब देखो क्या करना है, मुझे ये एज से 25 mm पे सेंटर होना चाहिए, और फ्रॉम दिस एज इट शुड बी 35। ओके, जैसे डायग्राम में दिया, यहाँ से 35 और यहाँ से 25। ओके, so for that purpose again I have to left double click over this blue box, double click करो blue box पे। Okay, then on the center of this circle click over it, and on this edge it will create one dimension, उसको क्लिक कर लो, और सेम सेंटर और ये लाइन पे क्लिक कर लो, और एक डायमेंशन बनेगा, उसको एक साइड में लेके क्लिक कर लो। फिर deactivate this command, and again double click over this, change it to 25 and change this to 35। सेंटर और एज, सेंटर और एज, अरे एक ही डायमेंशन उस पर कितना मारता है, जान लेते। कंट्रोल जेड कर, सगळं कंट्रोल जेड, एस्केप बटन दाब वरचा, हाँ दाब, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड कर, कंट्रोल जेड। हाँ, अब आप ब्लू बॉक्स पे डबल क्लिक कर, डबल क्लिक, डबल क्लिक, हाँ इधर लेके आ, क्लिक कर, एक क्लिक कर, ऊपर लेके जा, माउस लेके जा, ऊपर लेके जा, क्लिक। अभी ये वर्टिकल वाले को क्लिक कर, वर्टिकल लाइन को, हाँ क्लिक, साइड में लेके जा, साइड में लेके जा, क्लिक। अब वो बंद करो, कमांड बंद कर, ऊपर जा, हाँ अभी जो ऑरेंज है, अभी डबल क्लिक कर नंबर पे, नंबर पे डबल क्लिक, हाँ 85 वो 100 कर, ऊपर कर, समझ में आया? डालेगा रे, और पर्पल कलर आना नहीं चाहिए, पर्पल कलर यानी कि ओवर कंस्ट्रेंट, व्हाइट कलर यानी कि अंडर कंस्ट्रेंट, और अभी जो ग्रीन दिख रहा है दैट इज प्रॉपर्ली कंस्ट्रेंट। हाँ नहीं आना चाहिए, अगर आया तो कंट्रोल जेड कर लो,
गलत आ गया, एक्स्ट्रा डायमेंशन दे दिया। तो मतलब पूरे नहीं बैठे, बना दे डायरेक्ट फोटो लेकर बना, बोलने की जरूरत नहीं, ये बना दे कोर्स किया हो बच्चे। ये देखो नहीं ये है तो काट बस हाँ पूरा कंट्रोल करता होते उधर सर्कल मैं अगले मंथ में कैड कैड मॉडलिंग के कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ। मैकेनिकल में जितने बच्चे रहेंगे वो उसको सीख लो और कुछ इसमें आता ये ऑपरेट करता ही नहीं लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक डेमोन्स्ट्रेटी करावा और ये जिंदगी भर आपको यूज करना है। अगर आपको वर्किंग टाइम में काम करना होगा तो आपको कैड मॉडलिंग सीखना पड़ेगा। अगर आपको शिफ्ट में काम करना है तो आप बंद करो रात्रीची शिफ्ट सकाळची शिफ्ट असं जर करायचं असलं तर तिथं सगळं बघायचं। तुम्हाला आरामात जनरल टायमिंग मध्ये काम करायचं असलं एसी मध्ये बसून तर कॅड मॉडलिंग ऑप्शन नाही आहे। ओके हो गया हो गया डायमेंशन देख आ रहा है डबल क्लिक करके बोला ना डबल क्लिक डबल क्लिक किया सेव कर ये दो बार I think those ग्रीन दिसाले म्हणजे तुमचं सगळं प्रॉपर आहे। ओके अब देखो आगे यहाँ तक हो गया। ओके सो ये हमने नीचे का भी क्या कंप्लीट किया देखो वी हैव कंप्लीटेड दिस पर्टिकुलर प्लेट ओके विथ दिस होल। Now we have to give the volume to the sketch. So for that purpose, you have to exit this workbench because this is a Sketcher two-dimensional workbench. So you have to move to the part modeling workbench to give the 3D for your this sketch. For this, click over exit workbench. Click over that upward arrow type command. Now again you will come back to the previous interface. Okay. Now you have to use this pad command. Just below that paper pencil sketch command, you have one command named as pad. Just click over it
So it will start creating some thickness. So that is of 20 but we have to change it to 15, 1.5. Make change that to 1.5, 1.5, and select OK. So now it will create your this one. तो उल्टा हो गया। उल्टा हो गया, गलती से उल्टा गया। ये उल्टा करके जा रहा है। ठीक है ना, नॉर्मल यूज करते हैं। अब बराबर नहीं नहीं, अभी भी नहीं बराबर। उल्टा क्यों जा रहा है? उल्टा होने का फिर से पलटे करके जा रहा हूँ। यहाँ से 35 नहीं है, यहाँ से 35 है। सब नहीं जाना चाहिए था। अब ओके, ओ हो गया क्या कंप्लीट? 15 अरे पैड कमांड यूज करना है, सिर्फ बाहर आके इस पे क्लिक करो तो 15 करो ना, डायमेंशन को चेंज करो। हो गया कंप्लीट? ये वाला पैड झालं। नेक्स्ट देखो क्या है। अब हम ये 7 वाला डिजिट जो है, ये देखो ऐसा 7, ऐसा पूरा 7 नंबर उल्टा, दिस विल, ये हम स्केच करना है। ओके, अब ये स्केच करने के लिए देखो इसका डिस्टेंस कहाँ पे कितना दिया है, 35 प्लस 50, यानी बराबर पिच में 50 पे। ओके, सो फॉर दैट पर्पस आई विल यूज दिस प्लेन। इसका प्लेन का नाम है ZX प्लेन। ZX प्लेन है YZ प्लेन। YZ प्लेन को सिलेक्ट करो, YZ प्लेन, सिलेक्ट YZ प्लेन एंड गो टू स्केच। स्केच में चले जाओ, फिट करके लो उसको। वाकई नहीं यार, जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो करो ना, वहां पे किधर बात करते बैठते हो। अब पीछे चले गए तो चले जाओ, अब उसको कुछ ये नहीं। ओके, आ गए यहाँ पे। नेक्स्ट, अभी देखो ये वाला शेप हमें कंप्लीट करना है, यहाँ से इतना और ये ऐसा करके, ये ऐसा शेप है, 7 उल्टा 7 है। ओके, सो फॉर दिस आई हैव टू यूज वन कमांड नेम एज प्रोफाइल। अभी प्रोफाइल को लेना है, इस पे क्लिक करो, देख लो। आप पहले देख लो फिर बनाओ, मैं टाइम देता हूँ। तो इसको देखो यहाँ से स्टार्ट करना है। ये देखो रैंडमली यहाँ से बना लो ऐसा। ये देखो ऐसा यहाँ पे, यहाँ रैंडमली बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ वो किसका भी रेफरेंस लेने मत दो उसको। ये जो रेफरेंस ले रहा है ना, देखो ये ऐसा रेफरेंस आ रहा है, ऐसा रेफरेंस, ये आना नहीं चाहिए। सिर्फ ये लास्ट वाला इसका रेफरेंस आके इसको टच होना चाहिए। रैंडमली ऐसा 7 टाइप ऐसा बना के देखो, बन गया ऐसा शेप बना।
प्रोफाइल से कंटिन्यूस लाइन से शेप बना। बन गया क्या? रैंडमली बनाना है, कुछ भी ऐसा बराबर ऐसा नहीं, सिर्फ शेप आना चाहिए। देखो ऐसा 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 नीचे जाके ऐसा शेप आना चाहिए बस, जिससे कि हम उसको डायमेंशन दे पाए। रैंडमली बना, यस बन गया। अब इसको डायमेंशन देते जाना है। देखो तो डायमेंशन कैसे देना है, डबल क्लिक कर लो इसको, डायमेंशन, इसको डबल क्लिक करो, इस पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करो और इस पे क्लिक दे देना है। हो गया क्या? डायमेंशन दो फटाफट, जो जो डायमेंशन मैंने दे वैसे दो, ये लाइन को, ये लाइन को, ये लाइन को, ये लाइन को और ये एक लाइन, बस। उसके बाद ये एक लाइन कर दो और ये एक लाइन, यही जरूरत है, तो समझ में आ जाए। हो गया क्या? जो जो डायमेंशन दिख रहे हैं वैसे वैसे दे दो। डायमेंशन चेंज करने बाकी है, सिर्फ डायमेंशन पहले डाल के होगा, जो भी आया होगा डायमेंशन वो डाल दो। ये नहीं दिया तो भी चलेगा, क्योंकि हमें इसको कंस्ट्रक्ट कर देना। नीचे वाले को मत दो, इसको जरूरत नहीं, क्योंकि हम इसको मैच करके लेंगे तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब इसको डायमेंशन देखते कितना है, 15 + 20 कितना आएगा, 35। ये 35 दे दो। उसके बाद ये कितना है देखो, दिस इज ऑफ 30, ये 30 है। ओके, उसके बाद हाइट कितनी है, हाइट हाइट देखो 60 + 25 यानी 85 है, इसको 85 दे देना है। उसके बाद इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट देखो 25। हाँ, अब ये कैसा दिया देखो, अभी हम माइनस करना पड़ेगा। आप देखो कैसा है, ये 80 दिया है, यहाँ से 80 - 20 यानी कि होगा 60, यहाँ तक 60 है, प्लस ये नीचे का 15 है, यानी कि कितना आएगा, 60 में से 15 गया यानी आए 45, तो ये आएगा आपका 45। ओके, उसके बाद ये जो डेप्थ है कितना है, ये जो डेप्थ दी है कितनी है उसकी, कुछ नीचे से 25 दी है,
तो ये डायमेंशन डिलीट कर देता हूं मैं और इनके बीच डायमेंशन देता हूं डबल क्लिक करके। दिस इज 25। ओके, अब ये और ये लाइन हमें मैच करके लेनी है एज को। ये देख लो, डायमेंशन पहले दे दो ऐसे सेम, उसके बाद हम लास्ट इसको एज कैसे मैच करने के पता। हो गया क्या? 2 या 3 मिनट का प्रॉब्लम है बस, 2 मिनट भी बहुत हो गए, 2 मिनट। उसके बाद देखो लाइन और ये एज को मैच करने के लिए ये लाइन को सिलेक्ट करना है, ये एज को सिलेक्ट करना है। जहां पे डायमेंशन देते हैं उसके ऊपर एक ऑप्शन है कंस्ट्रेंट डिफाइंड इन डायलॉग बॉक्स, यहाँ ये ओपन करके इसमें कोइंसिडेंस करके देन सेकंड सिमिलर टू दिस कोइंसिडेंस करके। ओके, ये 20 हो गया। ऐसे बराबर डायमेंशन दे दो और ये एज मैच करने के लिए आपको ये लाइन और ये एज सिलेक्ट करके ये एक्टिव हो जाएगा, इसमें कोइंसिडेंस करके लेना है। फिर बाद में ये लाइन और ये एज से कोइंसिडेंस करके लेना।
वेट की कंप्यूटिंग करो, टाइप करके प्रिंट निकाल, टाइप करके प्रिंट निकालो, टाइप लेके आगे मैं आता हूं तो हो गया क्या कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखो क्या है, ये बना दिया। नाउ यू हैव टू एग्जिट दिस वर्कबेंच। वर्कबेंच एग्जिट करने के बाद देखो ये इतना वॉल्यूम कितना है 15 mm से ये इधर वॉल्यूम है, तो पैड अभी वो रिवर्स डायरेक्शन में उधर जाना चाहिए 15 mm, 15 mm इसको करना है ओके, तो ये आ गया 15 mm से ये यहाँ पे आ गया। अब नेक्स्ट थिंग देखो क्या है, हमें ये वाले हिस्से कंप्लीट करने हैं, यानी कि ये वाला एक शेप है ऐसा 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 ऐसा, ये एक शेप है और एक रेक्टेंगल वाला एक शेप है ओके। तो ये हमें दो स्केचेस बनाने पड़ेंगे क्योंकि ये अलग अलग है। या तो फिर आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाओ, यहाँ पे एक रेक्टेंगल, पर यहाँ पे और फिर से आपको कट बनाना ही पड़ेगा, तो दो स्केचेस सिवा उसको ये नहीं ऑप्शन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला फेस लेके ये वाला शेप बना के लेंगे और इसको पैड कर लेंगे 15 mm से। सिमिलरली ये वाला रेक्टेंगल बना के इसको पैड कर लेंगे। सो फॉर दैट I have to select, instead of selecting the plane I will select this surface and go to sketch। स्केच को जाना है, इसको फिट किया। अब देखो कैसे प्रोफाइल है, ये ऐसा करके यहाँ पे जुड़ रहा है ओके। सो फॉर दैट आई विल यूज अ प्रोफाइल कमांड। फिर से इसको क्या करूंगा मैं, देखो रैंडमली बना लूंगा ऐसे,
रैंडमली बना लिया। रैंडमली बनाने के बाद देखो ये कॉर्नर और इसका एज का कॉर्नर ये मैं कोइंसिडेंस करके ले लूंगा। तो कंट्रोल बटन यूज करना है तभी आप वो कोइंसिडेंस करके ले सकते हो। सेकेंडली ये वाला एज और कंट्रोल बटन दबा के ये वाला एज मल्टी सिलेक्शन के लिए यूज करना है और फिर से कोइंसिडेंस करके लेना है। ओके, कंट्रोल बटन दबाना जरूरी है, दबा के ही आप सिलेक्ट करना है। अब आप इसको डायमेंशन दे सकते हो। क्या क्या डायमेंशन है देखो, टोटल 80 है, यानी कि 80 माइनस दिस 15 इज इक्वल टू 65 विल बी द लेंथ। तो वो पहले दे देंगे हम उसको 65। ये पहले हम डायमेंशन दे देंगे इसको। ओके, अब ये है कितना 65, उसके बाद ये कितना है 15 है शायद, चेक करता हूं मैं तभी। 15 है बराबर। और ये जो है 20 mm है, उसकी जरूरत नहीं क्योंकि वो कंस्ट्रेंट के हिसाब से आया है। और इसको ये 20 देना, ये 20 दे दो, ये आ गया। अब आपका प्रॉपरली हो गया है, एग्जिट कर लो। एग्जिट करने के बाद इसको पैड करना है, फिर से पैड कमांड यूज करना है रिवर्स डायरेक्शन में, वो साइड में, और 15 mm ही है वो, और इसको पैड कर देना। सिमिलरली अभी इसको रोटेट करना है। रोटेट करने के लिए स्क्रॉल और आपका राइट क्लिक बटन दबा के रखो। ये ऐसे भी रोटेट कर सकते हो या तो फिर ये हैंड पे क्लिक करके इसको रोटेट कर सकते हो। हाँ, दोनों ऑप्शन से आप कर सकते हो। तब ये सरफेस लिया और स्केच में चलेंगे। अभी सिंपल है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेना है बस, सिंपल। सेंटर रेक्टेंगल लो या आप सिंपल वाला रेक्टेंगल लिया तो भी चलेगा। ये देखो, ये लिया, रेक्टेंगल बना लिया, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर को मैच किया, कंट्रोल बटन दबा के इसको कोइंसिडेंस करके लिया। ओके, और इसके बाद इसका जो डायमेंशन है हम चेक करना है मुझे। तो कितना है देखो, 35 है टोटल, ये 35 है और ये आपका 65 है। 35 and 65, तो give the dimension to this. This is 65 and this is 35. ओके, तो ये दोनों हो गए। एक बार चेक करना है ओके है क्या। नहीं, इसकी हाइट तो ज्यादा है, हाइट ज्यादा रहेगी। देखो एक मिनट, 25 plus 60 is equal to how much 85। 85 plus 15 यानी कि कितना होगा 100, यानी टोटल 100 है, यानी ये 85 मुझे देना पड़ेगा, ये 85। ओके, अब बराबर। अब एग्जिट कर लो और पैड करके लो, चेक करो, रिवर्स डायरेक्शन करना है 15 mm, 15 mm के चेक कर लो। यस, 15 mm है। ओके, तो देखो अभी ये अपना यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है यहाँ तक। ओके, ये देखिए पोर्शन। अब रह गया आखिर का रिब बनाना है हमें। तो रिब बनाने के लिए देखो, आपको प्लेन यहाँ पे लेके जाना, क्योंकि ये सेंटर पे रिब नहीं है, ऑफसेट रिबिंग है। तो ये ट्रायंगल, एक ट्रायंगल से भी बना सकते हो आप इसको रिब, या तो फिर आप एक लाइन से भी बना सकते हो। सिर्फ आपको क्या करना है कि ये कितने डिस्टेंस पे है देखो, यहाँ सेंटर से आपको फिर एक सिंपली आप यहाँ से प्लेन सिलेक्ट करके ले सकते हो, या तो फिर सिंपल ट्रायंगल बना लो। दैट इज मच इजियर कंपेयर टू यूजिंग अ रिब कमांड। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल रखूँगा, ये सरफेस को लो, स्केच पे चले जाओ, प्रोफाइल कमांड से आपको सिंपल एक ट्रायंगल बना के लेना है। ओके, और इसको कोइंसिडेंस करके लो, ये एज का पॉइंट और वो एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन करना है तिकडं अजून चालू आहे। ठीक, अरे बाप, चार्जर है क्या देखो, चार्जर इथं आज चार्जर है का बघा, क्यों नहीं बेटा, एक तो बेटा, इतना कंप्लीट करो।
हो गया ना? गुड। अब देखो, ये एज और ये एज को मैच करना है, और ये एज और ये एज को मैच करना है। नहीं होना ऐसा चाहिए होना, सीरियसनेस पर। हाँ, ये हो गया। उसके बाद अब इसकी हाइट देनी है हमें डायमेंशन से। ओके, बस इतना ही करना है। एग्जिट, पैड ऑप्शन यूज करना है, रिवर्स डायरेक्शन कितना है देखो, 15 mm है, सेम सिलेक्ट हो, आइसोमेट्रिक व्यू में लेके जाओ और इसको फिट करो, सेम आपके प्रॉब्लम जैसा व्यू आएगा, और इसको स्क्रीनशॉट आपको ले लें।